Okay. So again, good evening, everyone. So in last class, we have studied about TANM 1.3 irrational numbers, proof of irrational numbers, right? That proof contains of 2 marks to 3 marks question, in which we have seen different 3 types of problem, and we have used method of contradiction, right? Where root p or 1 upon root p type of question was there. There was another question in which square root of even number was there, and the final question in which we have seen root p plus root q or p plus root q, something that type of questions, isn't it? और मैंने वो सारी चीजें आपको फॉर्मूला बुक और सारी एक्सरसाइज खत्म करने के लिए बोला था 10m 1.3. So anybody having any doubt in 10m 1.3, including in class exercise question number 6? Any doubt in class exercise? Just type in chat box so that we can see that, or otherwise we can move to next exercise. So 10m 1.3 in class exercise or homework? Any doubt in class exercise? Doubt in any question? Question 6 भी हो गया अच्छे से? Students, I require response, please, because without response, I will not able to clarify that, or I will not able to understand that you know or not. Okay, so just type Y or N in chat box. In class exercise or homework, doubt in any question? Okay, Pradnya is having doubt in homework question 7, second part. Okay, next. Give me 1 minute, students. Okay, Krish is also having doubt in question 7, second part. Okay, anybody else? Okay. ओके, थैंक यू. ओके, और यार हर्षन को भी है. आई सी 6th क्वेश्चन, सुक्ति का होमवर्क 3rd क्वेश्चन. ओके ओके, फिर प्रज्ञा 7-2. ओके, सो लेट अस सी दैट. सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आईसी. किसी एक ही स्टूडेंट को डाउट है? बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको मेथड दी थी उसी मेथड से हो जाएगा. सो योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है, प्रूव दैट root p plus root q is irrational number where p and q are prime positive integers. So obviously first we will assume that root p plus root q is rational number. So if root p plus root q is rational number, so our first assumption will be that root p plus root q is rational number. Now if it is rational number, then I can write root p plus root q is equal to a by b, where a and b are co-primes, okay, and your b cannot be equal to 0, right? अब याद है आपको लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया था? मैंने आपको पूरा बोर्ड पे दिखाया था, यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया था. अगर एक ही स्क्वायर रूट है तो हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? अगर 2 स्क्वायर रूट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर 2 स्क्वायर रूट है तो रिमेंबर, हम पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, इजंट इट? चलो, अब क्या स्क्वायर हम डायरेक्टली करेंगे कि पहले एक चीज को आरएचएस में ले जाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे? याद करो लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायर करूंगा, राइट, तो बीच में भी अंडर रूट पी क्यू बचेगा, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. 2 टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आएंगी, तो मैं क्या करूंगा, कोई एक टर्म को पहले ले जाऊंगा फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगा. सो लेट अस डू दैट. किसी भी एक को लेके जाएं. सपोज मैं रूट पी को यहाँ पे रख रहा हूँ, सो दिस विल बी a by b माइनस स्क्वायर रूट क्यू. ओके, चलो अब दोनों जगह पे स्क्वायर करते हैं. सो दिस विल बी रूट पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a by b माइनस स्क्वायर रूट क्यू होल स्क्वायर. ओके, so let us simplify it. So root p whole square will be p, here a minus b whole square, so this will be a square b square minus 2a by b root q plus root q whole square, that is q, right? Now what was our aim? Our LHS and RHS should be different. Our LHS where all the rational parts should be there, and in RHS irrational part. And here we know that irrational part is nothing but the root q only. So everything should be on left hand side. Okay, so let us see that. So this will be
p माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस q, राइट। और अगर आपको इसको लेके जाना है तो सिर्फ p को इधर लेके आइए ताकि ये प्लस रहेगा। तो माइनस 2a बाई बी रूट क्यू, दैट विल कम हियर, इट विल बिकम 2a बाई बी इंटू रूट क्यू पॉजिटिव। on RHS I will get a square by b square plus q minus p, isn't it? फिर यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे और रूट क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। सो let us simplify here first. So this will be a square plus q minus p into b square whole divide by b square, जैसा लास्ट टाइम किया था वैसा ही हो रहा है, समझो। फिर ये b उधर जाएगा, 2a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। So your root q will be a square plus q minus p b square divide by b square into b by 2a. This will be get cancel out, और लास्ट टाइम भी 2a भी बचा था डिनोमिनेटर में, आपको याद होगा। So here my RHS part is rational and LHS part is irrational. So this is not possible. If this is not possible, that means our assumption is false. Assumption is false means root q plus root q should be irrational number. That's it. So it is clear everyone. Question 6 किसने पूछा था? Okay, चलो हर्षण ने, और हर्षण को वो क्लियर हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर होमवर्क। तो होमवर्क में सबसे पहले सुप्तिका ने पूछा है थर्ड क्वेश्चन, ओके। फिर क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट जिसमें सबको डाउट है। तो लेट अस सी दैट क्वेश्चन 3 का ओके। सो लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ होमवर्क, राइट। नाउ अभी थर्ड क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको कोई नंबर नहीं दिया है, राइट। आपको डायरेक्टली बोल दिया गया है कि root p should be irrational number. Prove that for any prime number p, your root p should be irrational number. तो होमवर्क का क्वेश्चन 3 क्या है स्टूडेंट्स पता है, राइट। इट इज नथिंग बट जो मैंने लास्ट टाइम आपको चार्ट बना के भेजा था पूरा, याद है कि पहला चार्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट। पहला चार्ट था रूट पी या 1/√p के लिए, दूसरा चार्ट था √e1 के लिए, तीसरा चार्ट था ये रूट पी प्लस रूट क्यू के लिए, राइट। तो ये कुछ नहीं है, ये जो ये चार्ट पे इधर मैंने किया था ना, दैट इज द थिंग ओनली, राइट। जो मैंने यहाँ पे किया था वही आपको करना है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? उसमें किसको डाउट था? सुक्ति का। सो सुक्ति का इट विल बी क्लियर, isn't it? Just type y or n in chat box please. Okay, thank you. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। Now, so see here, second part of question number 7. In this question, they are asking you that simplify or solve the following, in which in first bracket it is cube root of 3 plus in second bracket it is cube root of 2. Now, oh sorry, this is in first bracket only, my mistake. Cube root of 3 plus cube root of 2, and in second bracket it is 3 to the power 2 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 minus 6 to the power 1 by 3. Now if you know a simple formula of algebra, then this will be very easy question for you. Now, so if you simplify this, so first before starting simplification, can anyone tell me if I have cube root of 3 and I have to write this in the form of exponent of 3, then which exponent should I write here so that it is equivalent to it is cube root of 3? Are you getting my question? If I'm telling that this is cube root of 3, then I can express it in the form of exponent. Then here which expression should I write? Okay, 1 by 3. Right, great. So everyone knows this. So cube root of 3 is nothing but the 3 to the power 1 by 3, isn't it? Now, so if I convert this cube root of 3 and cube root of 2 in this form, then this will become 3 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 1 by 3. Now, let me rearrange this. I am rearranging this so that maybe you can get some idea that what is the formula over here. 3 to the power 2 by 3, 2 to the power 2 by 3, let me write at the end, and in between I will write minus 6 to the power 1 by 3. So just raise your hand. Anyone got the formula that what is the form over here?
or let me rearrange once again. So this is 3 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 1 by 3. This will be 3 to the power 1 by 3 whole square, isn't it? क्योंकि अगर मैं 3 to the power 1 by 3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं तो एक्सपोनेंट का भी अगर एक्सपोनेंट होगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. A to the power m whole to the power n, that will be a to the power m into n. So this will be 3 to the power 2 by 3. Same with this 2 to the power 1 by 3 whole square. Okay, now minus. Here we are having 6 to the power 1 by 3. So can I write 6 to the power 1 by 3 as 3 to the power 1 by 3 into 2 to the power 1 by 3. Now if it is 3 to the power 1 by 3 and 2 to the power 1 by 3, whole power will get common. So 3 into 2, 6 to the power 1 by 3. Okay. So anyone want to tell me which formula is here? Right. I think this hint is enough for all of you. Right. So Pragna, you are unmuted now. Can you tell me? Sir, the second bracket is a minus b whole square. Second bracket is a minus b whole square. Sure. What is the formula of a minus b whole Yes, sir. square, Pragna? A square minus 2ab plus b square. But here it is, where is 2 over here? Oh. Got it. So here we are having two Pragnas, Pragna y and Pragna um, right? So Pragna, you are our previous student na only? Yes, sir. Okay, हाँ. तो Pragna अभी सोचो, अभी कोई formula? Sir, a cube plus b cube. Very good, great. So what is the formula of a cube plus b cube? A plus b into a square minus ab plus b square. Very good, great. So a cube plus b cube will be a plus b into a square minus ab plus b square. Thank you, Pragna. So everyone got this, right? So everybody will get chance, right? Don't worry. So everyone will, now few students have answered me a plus b whole cube or a minus b whole cube. That is wrong, right? Everyone clear with this? And another students like Joel, Navya, Jaita, you all are right. Okay, Kushagra, right, but there should not be minus in between. Zaim whole cube should not be there, right? Same with Harish. So see here, everyone, a cube plus b cube will be equal to a plus b into a square minus ab plus b square. There is a different formula for a plus b whole cube. So whoever is not knowing this formula, just honestly write down this formula 5 times in formula book, right? Why? Because honestly, if you will write this 5 times, this is the only way to memorize any formula. Are you getting my point? So write formula as many times as you can until you get it remembered. Alright, तो जब तक वो याद नहीं रहती तब तक जितनी बार लिख सकते हो लिखो. This is the only way to memorize all the formulas. So this will be a plus b, a square minus ab plus b square. So I can write down this as a cube. What is my a over here? 3 to the power 1 by 3 whole cube. What is my b cube? 2 to the power 1 by 3 whole cube. So obviously this 3 will get cancelled out. This will be 3 plus 2. This will be 5. So this is my answer. Everyone clear with this? Right. So how we going to know that here we are going to use this formula or this formula will be applicable? Just by simple observation. If you are knowing all the formula, right, then by simple observation you can or you can analyze that here which formula will be applicable, isn't it? So if you observe the question, you can see here this is 3 to the power 1 by 3, 2 to the power 1 by 3. This is its square and its square. Suppose it is a and b, this is a square and b square, and this is a into b, right? So a square minus ab plus b square. और जो यहाँ पे मिस्टेक हुई प्रज्ञा से, वो किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, राइट? बिकॉज ह्यूमंस आर मेड फॉर मिस्टेक्स ओनली, एंड मिस्टेक्स अच्छी है, तो मिस्टेक से हमें सीखना है. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो हमने गलती से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ले लिया था, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ले रहे थे, तो दैट इज रॉन्ग. सो एवरीवन क्लियर विद दिस? चलो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट हो गया सबका. अभिषेक पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन 7 का फर्स्ट में क्या होगा? तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट आई होप सबका हो ही गया होगा. इट इज नॉर्मल फॉर्मूला ओनली. क्वेश्चन 7 का फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको दिया गया है 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2. सो अभिषेक, कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लीज?
Abhishek, you are unmuted now. Tell me. Abhishek, just speak. Yes, sir. What is the formula of a plus b into a minus b? Sir, हाँ I have no doubt. हाँ, क्या डाउट? अच्छा, डाउट है, पर डाउट तो आपको क्वेश्चन में है ना, मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी फॉर्मूला क्या होगी आपको पता है? नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, बोल दो नहीं पता। नहीं पता है। ओके, नो प्रॉब्लम अभिषेक। तो अभी जो भी ये फॉर्मूला देखेगी 5 टाइम्स लिखना है। ओके, हाँ, चलो। हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? अभिलाष, टेल मी। अभिलाष, यू आर अनम्यूटेड नाउ। व्हाट इज दिस? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। Sir, a square minus b square. वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अभिषेक, ये आपको 5 टाइम्स लिखनी है, और जिस भी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं आ रही वो भी 5 टाइम्स लिखेंगे। ओके, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So this is a plus b, this is a minus b, so this will be a square minus b square. My 3 square will be 9. Now root square, that will get cancelled out, this will be 2. 9 minus 2 will be 7. So everyone clear with this? Can we proceed? Okay, तो ये पूरा आपका था tan m 1.3. Is there any other doubt in tan m 1.3? If it is there, just type y or n in chat box. Y means you are having doubt. Okay, no means you are not having any doubt. Okay, thank you students for your response, and let us proceed. Okay, now Joel is asking about advanced questions, right? तो advanced question के लिए मैंने आपको already बोला था, advanced question सबके लिए नहीं है। जो आरडी शर्मा वो करेंगे उनके लिए, जस्ट एडवांस क्वेश्चन करना शुरू करो। अभी तक किसी ने भी मुझे एडवांस क्वेश्चन कोई पूछे नहीं है, राइट? एक बार आप एडवांस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। फिलहाल के लिए आप एक काम करना, जो भी एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं वो होमवर्क वाले ग्रुप में ही पूछें। ओके, तो पहले मुझे पता चले कि एडवांस क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसका होमवर्क अलग से भेजा जाए, राइट? फिर हम सोचेंगे कि उसके लिए क्या किया जाए। ओके, अलग अलग ऑप्शन है, या तो एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन सबके लिए नहीं है, तो सबके लिए मैं क्लास में कराऊंगा तो इट विल बी टाइम वेस्ट। तो मे बी हो सकता है जितने, अगर शायद फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है वही एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो फाउंडेशन वाले ग्रुप में उनको करा दूंगा। अगर उतने भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ओनली फ्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, फ्यू स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो एडवांस क्वेश्चन का अलग ग्रुप बना लेंगे। या अगर सभी के सभी कर रहे हैं तो फिर क्लास में ही करा दूंगा। तो पहले जस्ट स्टार्ट करो एडवांस क्वेश्चन करना, राइट? और वो सबके लिए नहीं है। ओके, और जोएल, अगर आपने स्टार्ट किया है तो जो भी डाउट है जस्ट सेंड मी। ओके, डोंट सेंड मी पर्सनली, अभी ग्रुप में ही भेजा जाए। चलो, tan m 1.4, द टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, जो हम क्लास 9 में ऑलरेडी कर चुके थे, बट अभी क्लास 10 में हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले? सी, सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस बचेंगे। वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में तुरंत आपके होमवर्क के जो डाउट होंगे वो देख लेंगे, और वो क्वेश्चन खत्म करके हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, और ये संडे आपकी ये चैप्टर की एग्जाम होगी ऑनलाइन। सो एवरीवन क्लियर विद दिस, राइट? तो आज ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और आज हम इसके बेस पे एक नया थियरम देखने वाले हैं। और जो अंकित ने डाउट भेजा था, जो एनसीईआरटी का डाउट था 4 टू द पावर n वाला, ओके, तो वो वाला डाउट यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे पहले हमें एक थियरम देखना है, वो थियरम के बेस पे है। ओके, चलो, सो लेट अस सी इट। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट tan m 1.4 का प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूँ, सारे प्रॉब्लम्स। फिर जब हमें वो थियरम की जरूरत पड़ेगी तब हम थियरम पढ़ेंगे, और फिर उसके बेस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। So in tan m 1.4, title of tan m 1.4 is decimal expansion of rational numbers. Right? We all know that rational numbers can be expressed in the form of
p by q। अब p by q को क्या मैं डेसिमल एक्सपेंशन कर सकता हूँ? यस, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, आइदर दिस डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो वहां से हम उसका एक थियरम पढ़ेंगे और वो थियरम से हम आगे बढ़ेंगे। ओके हाँ, सो लेट अस सी दिस। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। सो क्वेश्चन 1 इन क्लास एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन 42/100। तो इसको डेसिमल में लिखना है। देयर इज नॉट एनी हार्ड साइंस और हार्ड मैथमेटिक्स इन दिस। कोई बताएगा कैसे लिख पाएंगे 42/100 को? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? 42/100 है, जस्ट दो डेसिमल कैंसिल करो, सो इट विल बी 0.42। ओके, फ्री के मार्क्स लेने हैं नाउ। अब थोड़ा डिफिकल्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन -4/9, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। चलो कैसे लिखेंगे -4/9? एनीवन एनीवन रेज योर हैंड। Joel, you are unmuted now. You can speak. अंकित 2 square by 3 square से नहीं होगा, हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। Joel, you are unmuted now, and there is so much noise from your background. Joel, should I mute you? Hello, Joel. Okay, I think there is some disturbance in Joel's connection. Kushagra, you are unmuted now. Okay, so many students have answered, and okay, and you all are right. Kushagra, you are unmuted now. ठीक है, आई थिंक आज सबको ऑडियो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट? चलो, नो इश्यू। चलो, सो ऑब्वियसली -4/9 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -0.444। ये ऑलरेडी आप क्लास 9 में कर चुके हो। सो -0.4 और ये 4 के ऊपर आपका रिकरिंग बार आ जाएगा। ओके, या आप इसे डायरेक्ट भी याद रखो, राइट? क्लास 9 के केस में आपको याद रखवा गया होगा, अगर 1/9 है तो वो आपका 0.11111 चलता जाएगा। अब 4/9 है तो उसके साथ 4 मल्टीप्लाइड है, तो इट विल बी 0.44444। हाँ कुशाग्र, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देयर वाज सम नेट इश्यू, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये हो गया आपका -4/9। चलो इसी तरीके से नाउ थर्ड -2/15। कैसे करेंगे -2/15 को? जस्ट वी हैव टू डिवाइड 2/15, राइट? ओके, मोहित ने एक आंसर दिया है। चलो देख लेते हैं, इसका डिवीजन करते हैं। सो लेट अस डिवाइड 2 with 15। इनिशियली में डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए 0, ये हो जाएगा 20। 15 1 जा 20, सॉरी 15 1 जा 15। व्हाट विल बी माय रिमाइंडर? 5। अगेन 0, दिस विल बी 50, राइट? 50 के बाद अगर 0 नीचे आ रहा है, सो इट विल बी 50। 15 3 जा 45, वापस 5, वापस 0, वापस 15 3 जा 45, वापस 5 0 चलता रहेगा, और इधर 3 3 3 3 चलता रहेगा। सो हर्षन ने आंसर दिया है 0.3333। हर्षन रॉन्ग है, सबसे पहले 1 आएगा। ओके, सो और आगे माइनस है इसीलिए वो माइनस। सो योर आंसर शुड बी -0.13333। ओके, या मैं इसको लिख सकता हूँ -0.13 बार। तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था रेशनल नंबर, वो सारी चीजें फॉलो हो रही है, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ 327/500। हाँ ओके हर्षन, नो इश्यू।
327 by 500. अब ये करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 327 को 500 से डिवाइड करें, या दूसरा ऑप्शन देखना है जो इससे बहुत आसान हो जाएगा। वी ऑल नो दैट अगर डिनोमिनेटर में 100 है, 1000 है, 10 है, 10,000 है, तो हम उतने डेसिमल्स कट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 327 बाई 500 है, तो डिनोमिनेटर आप देखो 500 है, वो सिर्फ 1000 से एक ही स्टेप दूर है। मैं 500 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिक वो 1000 हो जाएगा, और अगर वो 1000 हो जाएगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, डिवाइड करने की जगह मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 327 डिवाइड बाय 500, आई विल मल्टीप्लाई विद 2 with denominator and numerator. So 500 by 2, that will be my 1000. 327 by 2, that will be my 654. Now 654 by 1000, so this will become 0.654. Clear? Okay, so this is the case of terminating. Okay, बाकी सारे थे आपके नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसके बाद है टर्मिनेटिंग। सो बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स देने हैं। चलो फिफ्थ, हो सकता है शायद आज ही हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाए, लेट अस सी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है 2/3। अब ये कर सकते हो होमवर्क में, इतना सब किया, अब ये क्या है, राइट, इजीली हो जाएगा, नो इश्यू, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 1/3 इज 0.3333, तो 2/3 0.6666 होगा, नथिंग एल्स। चलो क्वेश्चन 2, write the decimal expansion of the following numbers and mention what kind of decimal expansion each has. Okay, तो बस वो मेंशन करना है कि which kind of decimal expansion, मतलब जो यहाँ पे मैं बोलता जा रहा था, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, आइदर, और उसके अलावा बाकी वाले कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ओके, और ये 42/100 वाला टर्मिनेटिंग। चलो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक 2/9 है, 2/11 है, वो तो आपसे हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटीजर 1/8 है। चलो इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 4 इंटीजर 1/8। कोई बताएगा कैसे करेंगे? और फिर इसके ऊपर से हम एक थियरम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, डू इट फास्ट, रेज योर हैंड। 4 इंटीजर 1/3 नहीं, अनन्या, हाँ ऐसा आई एग्री। 8 4 32, 32 प्लस 1 33/8, आई एग्री। फिर डिवाइड करोगे, राइट, बट समझो ये इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया, मुझे पता था सब यही करेंगे। 4 इंटीजर 1/8 का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट द 4 प्लस 1/8, इजंट इट? 4 प्लस 1/8। तो बस अभी आपको वो मल्टीप्लाई करके इसको, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 4 को ऐसे ही रहने दो। अब 1/8 को सिंप्लीफाई करो, तो जब आप 1/8 फाइंड करोगे, राइट, तो 1/8 जब डिवीजन करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.125। So your answer will be 4 plus 0.125. This will be 4.125. Okay. अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर हम 33/8 करेंगे तो भी तो यही आएगा। आप 33/8 करोगे तो 8 4 32, फिर वापस यही सेम सिचुएशन होगी, 4.125। ओके, तो मैं दिखा रहा हूँ वापस बोर्ड, अब आपको क्लियर है, देखो। तो मैं 33/8 करूंगा तो भी 4.125 आएगा, या मैं 4 प्लस 1/8 करूँ तो दोनों केस में आंसर सही आएगा, दोनों मेथड राइट है, कोई भी मेथड में आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा, राइट। बट अगर आप इजीली कर सकते हो तो डिफिकल्ट वे में जाने की क्या जरूरत है? सो एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके, चलो, सो लेट अस सी अ न्यू थियरम बेस्ड ऑन इट, राइट। एक नया थियरम देखते हैं इसके बेस पे, और बाकी सारे क्वेश्चन वो थियरम के बेस पे हैं। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहे तो देखते हैं शायद आज ही नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए। चलो, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? If it is clear, just type Y or N in chat box. Y means it is clear, N means any doubt. Okay.
ओके सॉरी, नाउ सी ये मीटिंग खत्म होने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है, सो लेट अस एंड द मीटिंग, नई मीटिंग शुरू करते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। ओके, न्यू थियरम इन न्यू मीटिंग। थैंक यू एवरीवन।